me, and that this is maximum, or it will be given as a condition for finding the extreme, right? For using this, we have to multiply this equation by lambda and then add it to the first equation. Then there will be a new functional, and then you have to check which variable is present or not, or all of the variable are present, and then accordingly you have to use Euler's equation or their simplified form, right? So this will be Euler's formula will be dou h by dou y minus d by dx of dou h by dou y dash equal to 0, where h is nothing but f plus lambda g, right? Then there are certain equation based on this. If h does not contain x explicitly, then this equation we have to use h minus y dash dou h by dou y dash equal to c, right? Let us see few example based on Lagrange's method. Example number 1. First question: show that the extremal, is it visible to everyone? Show that the extremal Yes, sir. of the isoperimetric problem I of y of x is equal to integration from x1 to x2 y dash square into dx, such that subject to the condition integration x1 to x2 y into dx equal to k is a parabola. दैट मीन्स आपको बताना है कि जो फंक्शनल है हमारा पहला इक्वेशन नंबर 1, इसका जो एक्सट्रीमर होगा इट विल बी नथिंग बट अ पैराबोला, राइट? सो and it there is a condition given that integration x1 to x2 y into dx is equal to k, right? Solution: सबसे पहले तो we have to find y of x. We have to find y of x, y equal to f of x, such that equation 1 integration x1 to x2 y dash square into dx, that I can write as integration x1 to x2 f into dx. Call this equation number 1 is maximum or minimum, is minimum subject to the condition, second condition दी है उन्होंने, it will be denoted by integration x1 to x2 g into dx is equal to integration from x1 to x2 y into dx is equal to k. Call this equation number 2. Now for solving this, we'll multiply equation number 2 by lambda and then add it in equation number 1. So to use Lagrange's equation, we multiply equation 2 by lambda and add in equation number 1. So your new variable will denote it by h. h is equal to f plus lambda g. lambda इसको multiply होगा, ये lambda g बनेगा, then you will add it in equation number 1. so ये होगा f plus lambda g. it is nothing but integration, limit दोनों की same है, so x1 to x2 यहाँ पे lambda से multiply हुआ तो ये lambda into y होगा और ये y dash square होगा. so this will be y dash square plus lambda into y into dx. Call this equation number 3. Right now this is your new functional and you have to find its extremal. So first of all, check which variable are present and which are absent. So here you can notice that y is present and y dash is present, but x is not present. So since the integrand is free from
x. So which variable will use? F minus y dash dou f by dou y dash equal to c. We use f की जगह पे h है हमारे पास, h minus y dash dou f dou h, this is h dou h by dou y dash equal to c. Call this equation number 4, where h is equal to f plus lambda g. Is it clear to everyone? क्या कर रहे हैं हम लोग एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो हमने पहले भी किया था, बस यहाँ पे न्यू वेरिएबल से हम लोग डिनोट कर रहे हैं उसको, दैट इज h, right? Now for solving this you have to differentiate this h with respect to y dash first. Here h आपका कितना है, y dash square plus lambda into y. Now differentiate this with respect to y dash, dou h by dou y dash equal to, with respect to y dash कर रहे हैं, ये सेकंड टर्म तो जीरो होगी, इसका होगा 2 into y dash, right? Now putting this value in this equation number 4, 4 implies that h है आपका y dash square plus lambda into y plus lambda into y, sorry plus y dash, ये होगा माइनस साइन, माइनस y dash, आलम म्यूट करो, माइनस y dash, किसी को डाउट रहेगा तो अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, सॉरी रेज योर हैंड, माइनस वाई डैश डो एच बाई डो वाई डैश है, टू वाई डैश इक्वल टू सी, राइट? सिंप्लीफाई करते हैं इसको, दिस विल बी नथिंग बट वाई डैश स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई माइनस यहाँ पे होगा 2 इंटू वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू सी. इन दोनों को सिंप्लीफाई हो सकता है, दिस विल बी माइनस वाई डैश स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू वाई इक्वल टू सी. अब एक काम करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट दिस बिकम प्लस, दिस बिकम माइनस एंड दिस बिकम न्यू कांस्टेंट्स. सो दिस इज y डैश स्क्वायर माइनस लैम्डा इनटू y इक्वल टू माइनस सी. माइनस सी को मैं नया कांस्टेंट बोल देता हूँ, से c1. आ रहा है सबको समझ में? कंटिन्यूइंग ऑन नेक्स्ट पेज वी हैव यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ये इक्वेशन y में, y डैश में चाहिए. सबसे पहले लैम्डा y को इधर शिफ्ट करना होगा आपको. सो y dash square equal to c1 plus lambda into y. बट आपको y dash चाहिए, y dash square नहीं चाहिए. So taking square root on both sides, taking square root, क्या हो जाएगा? Continuing next page. So y dash आपका बनेगा taking square root के अंडर रूट c1 plus lambda into y, यहाँ तक हो जाएगा. बट y dash क्या होता है आपका? dy by dx equal to अंडर रूट c1 plus lambda into y, राइट? अब आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट से x के वेरिएबल और y के वेरिएबल सेपरेट करने होंगे. सो ये पूरी टर्म जो है वो y में है. सो आप इसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे और ये dx को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे. यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा. सो दिस इज dy अपॉन अंडर रूट c1 प्लस लैम्डा इंटू y इक्वल टू dx. नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट इट. आपको y के लिए वैल्यू चाहिए. इंटीग्रेटिंग क्या हो जाएगा? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस? इसके लिए आपको क्या करना होगा? इंटीग्रेशन c1 प्लस लैम्डा इंटू वाई रेज टू -1/2 इंटू dy हो जाएगा. बराबर है कि ये डिनोमिनेटर में रेज टू 1/2 है, न्यूमरेटर में जाएगा -1/2 बनेगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन dx प्लस सम न्यू कांस्टेंट से c2. इज इट राइट आदिल? बराबर है, ठीक है. नेक्स्ट इंटीग्रेशन आप करेंगे, दिस इज c1 प्लस लैम्डा वाई रेज टू -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय -1/2 प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस c1 प्लस लैम्डा वाई. c1 तो 0 है, लैम्डा वाई का डेरिवेटिव कितना होगा? लैम्डा इक्वल टू व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx? इंटीग्रेशन dx इज x प्लस c2, राइट? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज c1 प्लस लैम्डा वाई रेज टू -1/2 प्लस 1 इज +1/2 डिवाइड बाय +1/2 इंटू लैम्डा इक्वल टू x प्लस c2. आपको सिर्फ y में इक्वेशन चाहिए, राइट? सो ये बन जाएगा, ये रेज टू 1/2 है, ये होगा 2 अपॉन लैम्डा. सो दिस इज 2 अपॉन लैम्डा अंडर रूट c1 प्लस लैम्डा इंटू वाई इक्वल टू x प्लस c2.
अब आपको सिर्फ लैम्बडा चाहिए, यहाँ पे लैम्बडा वाई चाहिए सिर्फ। सबसे पहले 2/लैम्बडा को शिफ्ट करो राइट हैंड साइड, ये होगा C1 प्लस लैम्बडा इंटू वाई इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा लैम्बडा बाई 2 इंटू एक्स प्लस C2 बराबर है। यहाँ पे होने के बाद में आपको इसका स्क्वायर भी करना होगा, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये होगा C1 प्लस लैम्बडा वाई, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा लेकिन यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, सो दिस विल बी लैम्बडा स्क्वायर बाय 4 और ये ब्रैकेट होगा x प्लस C2 होल स्क्वायर। अब आपको सिर्फ लैम्बडा वाई चाहिए, इसको भी C2 को भी शिफ्ट करना है। पहले ये ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लेते हैं, right? So this will be C1 plus lambda y as it is, lambda square by 4 as it is, this will be x square plus 2x C2 या 2C2x बोल दो plus C2 square, ये से मल्टीप्लाई कर लो, this will be C1 plus lambda y equal to lambda square by 4x square plus यहाँ पे 2 है और ये डिवाइड बाय 4 है, so this will be nothing but lambda square by 2 into C2x plus lambda square by 4 C2 square माइनस, ये नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। सो आपको सिर्फ y की इक्वेशन चाहिए, तो लैम्बडा y C1 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, लैम्बडा स्क्वायर बाय 4 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर बाय 2 C2x प्लस लैम्बडा स्क्वायर बाय 4 C2 स्क्वायर माइनस C1 को हमने राइट हैंड साइड से शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो वो माइनस बन गया। तो आपको सिर्फ y चाहिए, लैम्बडा भी नहीं चाहिए, लैम्बडा यहाँ पे मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा एंड देयरफॉर योर इक्वेशन विल बी लैम्बडा बाय 4, एक लैम्बडा यहाँ से कट होगा, लैम्बडा लैम्बडा और यहाँ पे डिवाइड बाय लैम्बडा हो जाएगा, तो ये होगा लैम्बडा बाय 4 एक्स स्क्वायर प्लस C2 लैम्बडा डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे होगा लैम्बडा बाय 4 C2 स्क्वायर माइनस C1 अपॉन लैम्बडा, राइट। अब ये पैराबोला होना चाहिए था, इक्वेशन तो यहाँ तक आ गई लेकिन ये पैराबोला होना चाहिए था। पैराबोला के यूजुअल इक्वेशन तो है, पैराबोला की इक्वेशन ये भी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है क्या ये इक्वेशन, देख लेना इक्वेशन ऑफ पैराबोला। एंड देयरफॉर अगर इस फॉर्मेट में, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ पे लैम्बडा बाय 4 है, सो दिस विल बी वाई इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4 एक्स स्क्वायर प्लस C2 लैम्बडा बाय 2 इंटू एक्स प्लस इन दोनों को ब्रैकेट में ले लेते हैं, लैम्बडा बाय 4 C2 स्क्वायर माइनस C1 अपॉन लैम्बडा, ट्रीट इट एज अ कांस्टेंट, सो विच इज अ पैराबोला, विच इज ए पैराबोला। आया क्या सबको समझ में, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y, पहले y डैश तक जाएंगे उसके बाद में इंटीग्रेट करेंगे और y में इक्वेशन करेंगे, बराबर है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर क्या किया है, समझ में आ गया। सबसे पहले तो आपने दो इक्वेशन बनाने हैं, आपको दो इक्वेशन क्वेश्चन में दिए होंगे, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, देन इक्वेशन 2 को आप लैम्बडा से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फिर इक्वेशन नंबर 1 में जो है ऐड करेंगे, न्यू इक्वेशन मिलेगी, उसमें देखेंगे कि कितने वेरिएबल प्रेजेंट है, कोई सब अगर प्रेजेंट है तो आप आइलस की नॉर्मल इक्वेशन यूज करेंगे, अगर कोई एक वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो अकॉर्डिंगली आपके पास जो कोरोलरीज है उनमें से कोई फॉर्मूला यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे फ्री फ्रॉम एक्स था तो आपने ये इक्वेशन यूज किया, उसके लिए आपको डो एच बाई डो वाई डैश चाहिए था, उसको डिफरेंशिएट किया, फिर इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया और फिर वाई डैश स्क्वायर और फिर वाई डैश में इक्वेशन बनाई। जब आपको वाई डैश में इक्वेशन मिल गई फिर उसके बाद आपने इंटीग्रेशन के रूल से इंटीग्रेशन किया है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 है
find the curve y is equal to f of x for which find the curve for which y is equal to f of x for which integration from 0 to pi y dash square minus y square into dx is extremum if integration from 0 to pi y into dx equal to 1. This question was asked in 2016 examination, right? तो दो इक्वेशंस आपके पास है, आपको इसका एक्सट्रीमम फाइंड आउट करना है अंडर दिस कंडीशन. सो वी हैव टू फाइंड y is equal to f of x such that integration from 0 to pi है यहाँ पे, you can call it as x1 to x2 f into dx, that is nothing but integration from 0 to pi y dash square minus y square into dx. Call this equation number 1 is extremum with the condition integration x1 to x2 g into dx is equal to integration 0 to pi y into dx equal to 1. Call this equation number 2, राइट. सो आपको ऐसा y चाहिए जो इस फंक्शनल को एक्सट्रीमम करे, मिनिमम या मैक्सिमम कर दे अंडर दिस कंडीशन, राइट. फॉर दैट यू विल यूज Lagrange's मेथड. क्या करेंगे, विल मल्टीप्लाई 2 बाय लैम्बडा एंड ऐड इन 1. मल्टीप्लाई 2 बाय लैम्बडा एंड ऐड इन 1. सो इक्वेशन बन जाएगी. एंड ऑल्सो तो आपका h होगा f प्लस लैम्बडा जी, जो कि बन जाएगा इंटीग्रेशन में आपका इंटीग्रेशन होगा लिमिट 0 टू पाई, इसको लैम्बडा से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये टर्म एज इट इज है y डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस लैम्बडा इंटू वाई इंटू डी एक्स बराबर है क्या. कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3. अगर डाउट है तो रेज योर हैंड. सराउंडिंग वॉइसेस कौन बता रहा है. अरबाज क्या हुआ, आवाज आ रही क्या. ठीक है, देखते हैं. ऑलराइट, ये इक्वेशन है अभी. अब ये इस इक्वेशन में देखो कौन सी टर्म प्रेजेंट नहीं है, x y और y डैश में से y भी है और y डैश भी है, बट x इज नॉट प्रेजेंट. सो सिंस h इज फ्री फ्रॉम x, वी यूज कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग, h माइनस वाई डैश डो h बाय डो y डैश इक्वल टू c. कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4 वेर h की वैल्यू कितनी है हमारी, h है हमारा y डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस लैम्बडा इंटू वाई, राइट. अब for using this equation we have to differentiate this with respect to y dash. So dou h by dou y dash differentiating with respect to y dash partially we have, यहाँ पे सिर्फ y dash है, ये और ये नहीं है. So इसका होगा 2y dash, right. Now putting this value in equation number 4 we have 4 becomes h है हमारा y dash स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस लैम्बडा इंटू y माइनस y डैश इंटू 2y डैश इक्वल टू c, राइट. सिंप्लीफाई करो इसको, दिस इज y डैश स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस लैम्बडा इंटू y माइनस 2y डैश स्क्वायर इक्वल टू c. और सिंप्लीफाई करते हैं, दिस विल बी नथिंग बट माइनस y डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस लैम्बडा इंटू वाई इक्वल टू सी. अब यहाँ पे सिर्फ y डैश रहना चाहिए, तो एक काम करते हैं y डैश स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं -1 से तो भी चलेगा, अदरवाइज इसको इधर शिफ्ट करते हैं और -c को इधर शिफ्ट करते हैं. सो शिफ्टिंग दिस ऑन राइट हैंड साइड माइनस y डैश स्क्वायर
and writing it as left hand side. So this is y dash square equal to minus c minus y square plus lambda into 1 बराबर है. Taking square root on both sides, y dash is under root minus c minus y square plus lambda into y बराबर है. But y dash is nothing but dy by dx equal to under root क्या होगा under root minus c minus y square plus lambda into y, right? अगेन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट यूज करते हैं. y के वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड और x के वेरिएबल राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं. सो वी हैव dy बाय अंडर रूट माइनस c माइनस y स्क्वायर प्लस लैम्बडा इनटू y इक्वल टू dx. अब यहाँ से आपको इंटीग्रेशन करना है. सो यूजिंग इंटीग्रेशन रूल यू हैव टू सिंप्लीफाई इट. बट डिनोमिनेटर में अगर आपके पास अंडर रूट में है तो आपको कुछ तो एक स्क्वायर रूट में चाहिए होगा. एक मिनट, इसको भी थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करते हैं. सबसे पहले एक मिनट यहाँ पे इस टर्म को डिनोमिनेटर की टर्म को आपको परफेक्ट स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म करना है. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर प्लस लैम्बडा वाई है. माइनस वाई स्क्वायर प्लस लैम्बडा वाई. फॉरगेट अबाउट माइनस सी फर्स्ट. माइनस वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर प्लस लैम्बडा वाई को मैं अगर माइनस लैम्बडा वाई करता हूँ तो ये जो टर्म है इसको परफेक्ट स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है. दिस विल बी माइनस वाई वाई माइनस लैम्बडा बाई 2 स्क्वायर. अगर y माइनस लैम्बडा बाई 2 दिख रहा है आपको, y माइनस अगर इसको एक्सपांड करते हैं तो क्या होता है, y माइनस लैम्बडा बाई 2 होल स्क्वायर को y माइनस लैम्बडा बाई 2 होल स्क्वायर. तो ये होगा y स्क्वायर माइनस 2y इंटू लैम्बडा बाई 2 प्लस लैम्बडा बाई 2 होल स्क्वायर. दैट विल बी लैम्बडा स्क्वायर बाई 4. यहाँ से ये 2 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, y स्क्वायर माइनस लैम्बडा y प्लस लैम्बडा स्क्वायर बाय 4. दिख रहा है ये आपको. ये रफ वर्क है, ये इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. वी आर जस्ट trying to simplify the denominator term, right? Let me continue on the next page. देखो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन है dy बाय अंडर रूट माइनस सी माइनस लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा वाई बराबर यही है टर्म इक्वल टू dx. सो मुझे इस डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म करना है. इंटीग्रेशन ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ax स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. दैट इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a बराबर है क्या ये. अब देखो इसको करने के लिए एक काम करते हैं. जो डिनोमिनेटर टर्म है, इफ आई राइट y माइनस लैम्बडा बाई 2 होल स्क्वायर, तो ये बन रहा है y स्क्वायर माइनस लैम्बडा y प्लस लैम्बडा स्क्वायर बाय 4. अभी हमने सिंप्लीफाई किया है प्रीवियस पेज पे. यहाँ पे बराबर है क्या. सो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आपकी ऐड हो रही है. कौन सी टर्म है तो
वो तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि माइनस साइन अगर बाहर लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई है, लेट मी अगेन राइट इट, ये वाई स्क्वायर है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही है लैम्डा स्क्वायर बाय 4, और ये साइन जो है वो माइनस है, ये माइनस से प्लस बन रहा है और ये माइनस, यानी माइनस साइन बाहर है। सो अगर ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही है तो आपको माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय 4 भी ऐड करना होगा। सो अब एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन डी वाई बाय अंडर रूट, देखते क्या ऐड हो रहा है। माइनस सी रहने दो, माइनस ब्रैकेट के अंदर y माइनस लैम्बडा बाई 2 होल स्क्वायर। लेकिन अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे ये दो टर्म तो मिल रहे हैं माइनस साइन के बाहर, लेकिन ये टर्म एक्स्ट्रा हो रही है, ये है माइनस लैम्बडा स्क्वायर बाय 4। हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट अंडर रूट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा टर्म में लैम्बडा स्क्वायर बाय 4 हो रहा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको प्लस लैम्बडा स्क्वायर बाय 4 ऐड करना होगा, कि माइनस साइन पहले ही है तो आपको प्लस लैम्बडा स्क्वायर बाय 4 करना होगा, इक्वल टू डी एक्स। क्या ये स्टेप समझ में आ रही है आपको? सिंप्लीफाई दिस, वी हैव इंटीग्रेशन डी वाई बाई अंडर रूट, यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म को हम लोग कंबाइन करते हैं, सो वी हैव लैम्बडा स्क्वायर बाय 4 माइनस सी माइनस वाई माइनस लैम्बडा बाय 2 होल स्क्वायर equal to dx. now you can integrate it, integrating on both sides, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, ये है आपका x, यहाँ पे दिस इज योर x एंड दिस इज योर a, सो ये हो जाएगा y माइनस लैम्बडा बाई 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट लैम्बडा स्क्वायर बाय 4 माइनस सी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे इसको परपेचुएट करना था हमको, एक और रूट लेना पड़ेगा, थोड़ा जो है ना समझना पड़ेगा आपको, ये स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट के अंदर एक और स्क्वायर रूट है, क्या ये दिख रहा है आपको साफ साफ? ये मेन स्क्वायर रूट है हमारा, हमारे पास एक अलग पेन होना चाहिए था, लेट मी सी, रेड पेन होगा तो मैं रेड पेन से आपको थोड़ा अलग बता देता हूँ। ये देखो, मेन हमारा जो स्क्वायर रूट है वो ये वाला है, ये बिगर स्क्वायर रूट, दिस इज द बिगर वन, और उसके अंदर हमारा ये स्मॉलर स्क्वायर रूट है फॉर द फर्स्ट टर्म, दैट इज ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर के लिए। सो आपका ए होगा अंडर रूट लैम्बडा स्क्वायर माइनस सी, ऑल ऑफ यू इज इट क्लियर? और राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन करेंगे, इट इज नथिंग बट एक्स प्लस सी डैश, राइट? अब यहाँ से आपको सिर्फ y चाहिए, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय साइन, नॉट साइन इनवर्स, साइन इनवर्स यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे आएगा साइन, so this will be y minus lambda by 2 divided by under root lambda square by 4 minus c equal to sine of x plus c dash, राइट? अब आपको यहाँ से भी सिर्फ y चाहिए, ये डिनोमिनेटर की टर्म को हम लोग को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, दिस इज y माइनस लैम्बडा बाय 2 इक्वल टू अंडर रूट लैम्बडा स्क्वायर बाय 4 माइनस c इंटू साइन ऑफ x प्लस c डैश, राइट? अब यहाँ से लैम्बडा बाय 2 माइनस लैम्बडा बाय 2 को भी राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, दिस इज नथिंग बट y इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 प्लस अंडर रूट लैम्बडा स्क्वायर बाय 4 माइनस सी इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस सी डैश, और ये है हमारा फाइनल आंसर। क्या ये क्लियर है? इतना पार्ट आपका इंटीग्रेशन का पार्ट आता है, अगर आपको ये समझ में आता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देख लो, डाउट है तो पूछ लो। डाउट है कुछ, रेज योर हैंड, मैं अनम्यूट कर देता हूँ।
है सबको समझ में? नेक्स्ट एग्जांपल ले फिर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। Now next example is somewhat an example in terms of words. So आपको उसको समझना पड़ेगा पहले, तभी आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। And this question was asked 3 times in your examination. Example number 3. First है find the curve C when the curve C of given length L which encloses a maximum area. This is the first question. इसी को alternative question है, और find a plane or find the plane in the plane curve of fixed perimeter and